Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome back to online classes of Iqra Faz by secondary schools and colleges, our project of Iqra education system. Dear students, in this video lecture today, I am going to tell you about pronoun. This is the topic which you already have studied in your classes 6 and 7. But today in class 8, we will go through this topic little bit in detail. As you know, pronoun is a word which is used instead of a noun. In simple words, any word that comes at the place of noun to avoid repetition is called pronoun. यानी कि एक ऐसा लफ्ज़ जो हम किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं जुमले में, ताकि हमें उस नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, दोहराना ना पड़े. फॉर एग्जाम्पल, इट लुक्स वेरी स्ट्रेंज टू से दिस. Ali is my friend. Ali goes to school. Ali and I play cricket together. Ali and I study together. Ali stands first in class always. So on and so forth. लेकिन इसके बजाय अगर हम यूं कहें, Ali is a good boy, he plays cricket, he is my good friend, we study together, we play together, he stands first in his class. Now you see, instead of repeating the word Ali, which is a noun, we are using he at the place of Ali. So that he is called pronoun. And under the brackets on the board before you people, I have written down some examples of pronouns: he, my, yourselves, etc. Dear students, pronoun is not as simple as you have studied so far. Pronoun इतना आसान भी नहीं जितना आप लोगों ने क्लासेस 6 और 7 में पढ़ा. Let's go through the types of pronouns we have in English language. We have 5 different types of pronouns: personal pronouns, possessive pronouns, self pronouns, demonstrative pronouns, and interrogative pronouns. I will teach and explain all these 5 categories or types of pronouns one by one in detail. You can see on the board the first 3 types, personal, possessive and self pronouns, are interrelated to each other. I am going to draw a map on the board before you. मैं आपके सामने बोर्ड पर एक मैप बनाऊंगा या एक चार्ट बनाऊंगा जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे पर्सनल प्रोनाउन या पॉजिटिव प्रोनाउन या सेल्फ प्रोनाउन, ये तीनों प्रोनाउंस आपस में इंटर रिलेटेड हैं, जबकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन इंडिविजुअल प्रोनाउंस हैं. अलग से सेपरेटली एक टॉपिक है जिसको मैं आपको अलग से डेमोन्स्ट्रेटिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन समझाऊंगा. लेट्स गो थ्रू द चार्ट बिफोर यू ऑन द बोर्ड. दिस इज अ चार्ट बिफोर यू. I have written 3 types of pronouns in the chart because they are interrelated to each other. The first one is personal pronoun, second is possessive pronoun, and third is self pronouns. So you can see each of these 3 types has further 2 categories. For example, in personal pronouns, we have 2 categories: subject pronoun and object pronoun. So whenever you hear about subject pronoun or object pronoun, both are personal pronouns. And you can see there are 7 pronouns written on the board: I, we, you, they, he, she, and it. So the object pronouns of these subject pronouns are me for I, us for we, you for you, them for they, him for he, her for she,
and it for it. So now you know, whenever you use any personal pronoun at subject position, you will use any one of these pronouns according to your need. So आपको जब भी पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्ट पोजीशन पर, यानी कि जुमले में सब्जेक्ट की जगह पर अगर कोई नाउन सब्जेक्ट था, अली प्लेज क्रिकेट, अब ये अली यहाँ पर जुमले में सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो जब आप इसका प्रोनाउन लगाएंगे अली की जगह, तो आप इन्हीं सब्जेक्ट प्रोनाउन में से कोई लगाएंगे। अब अली चूंकि थर्ड पर्सन है तो हमने उसके लिए ही का इस्तेमाल किया, ही प्लेज क्रिकेट। अगर जुमला हो शाजिया कुक्स फूड, तो शाजिया की जगह पर हम सब्जेक्ट प्रोनाउन में से क्या लगाएंगे? यस, वेरी राइट, शी का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं अपने लिए अपने नाम की जगह पर, या आप अपने लिए अपने नाम की जगह पर, या कोई भी स्पीकर अपने लिए अपने नाम की जगह पर कौन सा प्रोनाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाएगा? इनमें से जब भी स्पीकर कहेगा तो वो बात करेगा कि मैं ये काम करता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो अगर अहमद कह रहा है कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो वो यूँ तो नहीं कहेगा ना अहमद इंग्लिश बोलता है, तो अहमद तो अपने लिए मैं का इस्तेमाल करेगा ना। तो प्रोनाउन क्या आएगा? अहमद की जगह उसके अपने नाम की जगह आए का इस्तेमाल होगा। इसी तरह आप भी जब अपने लिए कोई जुमला बोलेंगे और अपने नाम की जगह पर कोई प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होगा तो आई का इस्तेमाल करेंगे। और अगर मैं और आप, हम दोनों कोई काम करते हैं और मैं या आप ये बता रहे हैं कि हम ये काम करते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं, तो आप अपना नाम और मेरा नाम लेकर तो नहीं बोलेंगे ना, बल्कि आप कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? हम वी का इस्तेमाल करेंगे हम। और जब आप किसी और से बात कर रहे हैं सामने वाले से, तो उस सामने वाले को आप किससे मुखातिब करेंगे? अगर मसलन आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए आप सेकंड पर्सन है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं आप यूँ नहीं कहूँगा अहमद तुम कैसे हो या अहमद कैसा है, मैं ये कहूँगा तुम कैसे हो या आप कैसे हैं, हाउ आर यू, या यू आर माई गुड फ्रेंड, यू आर अ गुड स्टूडेंट। जब आपको मुखातिब करूँगा तो यू से। तो जब भी कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट पोजीशन पर आएगा तो इनमें से कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा, और जब भी कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट पोजीशन पर आएगा तो इनमें से कोई प्रोनाउन आएगा। तो पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट प्लेस पर भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट प्लेस पर भी आ सकता है। जब सब्जेक्ट प्लेस पर आएगा कोई पर्सनल प्रोनाउन तो इनमें से कोई एक होगा, और जब ऑब्जेक्ट पोजीशन पर आएगा तो इनमें से कोई एक होगा। यहाँ तक अभी हमने पर्सनल प्रोनाउंस को समझा है। सेकंड प्रोनाउंस हैं, टाइप ऑफ प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। लफ्ज पजेसिव का मतलब होता है मिल्कियत शो करने वाला, पोजेशन शो करने वाला। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये मार्कर मेरा है, ये मार्कर मेरा है, तो मैं कैसे कहूँगा? दिस इज, क्या ये कहूँगा कि सर हसनैन्स मार्कर या सर फराज मार्कर या सर तलहाज मार्कर? नहीं, बल्कि मैं इस मार्कर की मिल्कियत शो कर रहा हूँ कि इसकी मिल्कियत मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ। तो मुझे मिल्कियत शो करने के लिए जो प्रोनाउन लगाना है वो इनमें से कोई एक होगा। ये मेरा मार्कर है, दिस इज माय मार्कर। ये हमारा मार्कर है, दिस इज आवर मार्कर। ये तुम्हारा मार्कर है, दिस इज योर मार्कर। ये उनका मार्कर है, दिस इज देयर मार्कर। ये उस, यानी कि किसी लड़के की बात कर रहा हूं, ये उसका मार्कर है तो दिस इज हिज मार्कर। और अगर किसी लड़की की मिल्कियत शो कर रहा हूं कि ये उसका मार्कर है, किसी लड़की का मार्कर है, दिस इज हर मार्कर। तो आपने देखा कि हमने पजेसिव प्रोनाउन की जो फर्स्ट कैटेगरी थी, जिसको हम
डिटरमिनर कहते हैं। इसको डिटरमिनर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिल्कियत को डिटरमाइन कर रहा है कि ये किसका मार्कर है, ये किसकी चीज है। तो ये बताने के लिए कि इस मार्कर की मिल्कियत या इस फलां चीज की मिल्कियत का ताल्लुक उससे है, तो उसके लिए आप जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो पॉसेसिव डिटरमिनर होगा। अब सेकंड कैटेगरी है पॉसेसिव की, वो है पॉसेसिव इटसेल्फ। एक कैटेगरी तो हो गई डिटरमिनर, आपने देखा। अब दूसरी कैटेगरी है पॉसेसिव। डिटरमिनर और पॉसेसिव दोनों ही पोजेशन को शो करते हैं। फिर दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पर्सनल प्रोनाउन है आई वी यू दे हिच इट और मी अस यू देम हिम हर इट। तो आपको डिफरेंस पता चला कि जब पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट पोजीशन पर आएगा तो आई वी यू दे हिच इट में आएगा, और जब पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट पोजीशन पर आएगा तो मी अस यू देम हिम हर इट के तौर पे आएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको यहाँ मैं डिफरेंस बताता हूँ कि डिटरमिनर और पॉसेसिव का डिफरेंस क्या है। दोनों ही मिल्कियत शो करते हैं, लेकिन दोनों का एक मामूली सा फर्क है, वो ये है कि जब आप किसी भी चीज का नाम लेकर बता रहे हैं कि ये मेरा मार्कर है, ये मेरा रूलर है, ये मेरी स्टिक है, या ये मेरा बैग है, ये मेरी साइकिल है, ये मेरे खिलौने हैं, ये मेरा मोबाइल है, व्हाटएवर, जब आप उस चीज़ का नाम ले रहे हैं, जिसकी मिल्कियत बता रहे हैं, तो पॉसेसिव डिटरमिनर्स आएंगे। माय मार्कर, आर मार्कर, योर मार्कर, देयर मार्कर, हिज मार्कर, हर मार्कर, इट्स मार्कर, my computer, our computer, your computer, my mobile, our mobile, your mobile, their mobile, so on and so forth. So shortly speaking, whenever you are using the name of that object of which you are telling the possession, जब आप उस चीज़ का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी मिल्कियत बता रहे हैं कि वो किसकी मिल्कियत है, तो पॉसेसिव डिटरमिनर्स आएंगे। और अगर आप नाम इस्तेमाल ना करें, चाहे इसलिए ना करें कि ऑलरेडी सामने वाले को पता है कि किस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। मैंने आपसे पूछा कि ये मार्कर किसका है, तो आप कह सकते हैं ये मार्कर मेरा है, दिस इज माय मार्कर। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये मेरा है, क्योंकि सवाल में मैंने लफ्ज़ मार्कर का इस्तेमाल कर दिया। तो यहाँ पता है कि मार्कर की मिल्कियत पूछी जा रही है, मार्कर की मिल्कियत के बारे में बात हो रही है। तो अब जब आप जवाब देंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप लफ्ज़ मार्कर इस्तेमाल लाजमी करेंगे, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर इस लफ्ज़ मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप पॉसेसिव डिटरमिनर कहेंगे, दिस इज माय मार्कर, दिस इज आवर मार्कर, दिस इज योर मार्कर, दिस इज देयर मार्कर, दिस इज हिज मार्कर, दिस इज हर मार्कर, दिस इज इट्स मार्कर। और अगर आप लफ्ज़ मार्कर का इस्तेमाल ना करें तो फिर आप कहेंगे दिस इज माइन। मैंने पूछा ये मार्कर किसका है, आपने कहा दिस इज माय मार्कर। और आप यूँ भी कह सकते हैं दिस इज माइन। तो पता ये चला कि अगर आप जिस ऑब्जेक्ट की पोजेशन बता रहे हैं, मिल्कियत बता रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का नाम ले रहे हैं तो डिटरमिनर आएगा उससे पहले। और अगर आप उस ऑब्जेक्ट का नाम नहीं मेंशन कर रहे तो फिर डिटरमिनर प्रोनाउन नहीं आएंगे, बल्कि पॉसेसिव प्रोनाउन आएंगे। दिस इज माइन, मसलन हुज मार्कर इज दिस, ये किसका मार्कर है, दिस इज माइन, दिस इज आर्स, दिस इज योर्स, दिस इज देयर्स, दिस इज हिज, दिस इज हर्स और दिस इज इट्स। तो आपको ये फर्क पता चला। नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनर एंड पॉसेसिव प्रोनाउंस। बोथ शो द पोजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दोनों ही प्रोनाउंस किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज की पोजेशन शो करते हैं, मिल्कियत शो करते हैं।
तो जब आप उस ऑब्जेक्ट का, उस चीज का नाम ले रहे हैं तो डिटर्मिनर्स आएंगे, और अगर उस चीज का नाम नहीं ले रहे हैं तो पॉसेसिव प्रोनाउंस आएंगे। हम अपने टॉपिक को आज यहीं तक रोकते हैं। आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव सेल्फ प्रोनाउंस एंड एम्फेटिक सेल्फ प्रोनाउंस tomorrow in the next video inshallah. I hope you people have been able to understand personal pronouns and possessive pronouns in detail. आपको ये भी पता चला कि एक प्रोनाउन की, किसी भी प्रोनाउन की 5 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। लफ्ज प्रोनाउन क्या है? अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। कोई भी लफ्ज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन की 5 टाइप्स होती हैं: पर्सनल प्रोनाउन, possessive pronoun, self pronoun, demonstrative pronoun and interrogative pronoun. इन 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में से मैंने आपको बताया आज इस वीडियो में कि पर्सनल, पॉसेसिव और सेल्फ प्रोनाउंस इंटर रिलेटेड होते हैं, इनका ताल्लुक एक दूसरे से होता है। और क्यों इंटर रिलेटेड होते हैं आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ये सारे प्रोनाउंस जो हैं, चाहे 2 पर्सनल प्रोनाउन हो, चाहे 2 पॉसेसिव प्रोनाउन हो, चाहे 2 रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक यानी कि सेल्फ प्रोनाउंस हो, देखिए ये पूरी एक कैटेगरी चल रही है आई की, ये वी की पूरी कैटेगरी चल रही है, ये यू की कैटेगरी चल रही है, ये जे की कैटेगरी, ये ही की कैटेगरी, ये शी की कैटेगरी और ये इट की कैटेगरी। तो ये पर्सनल, पॉसेसिव और सेल्फ प्रोनाउन आपस में इंटर रिलेटेड हैं। So this is why I have written here that these 3 pronouns are interrelated to each other. We have so far understood personal pronouns as subject and object pronouns. We have understood possessive pronouns as determiner and possessive. Tomorrow in the next video lecture inshallah we will discuss about self pronouns and I will tell you what are self pronouns, why we call them self pronouns, and what are reflexive self pronouns and emphatic self pronouns, and दोनों का डिफरेंस क्या है। शक्ल दोनों की एक ही होगी, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, एम्फेटिक भी हो सकता है, आवर सेल्व्स रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, एम्फेटिक भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा हमें कि कब रिफ्लेक्सिव है और कब एम्फेटिक है? वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।